ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 वर्स नंबर 13। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यवशयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada ki jai। Translation: The Almighty Personality of Godhead Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees, who were fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disc to protect them. Purport. The Brahmastra, the supreme weapon released by Ashwatthama, was something similar to the nuclear weapon, but with more radiation and heat. This Brahmastra is the product of a more subtle science, being the product of a finer sound, a mantra recorded in the Vedas. Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon because it can be directed only to the target and nothing else. Ashwatthama released the weapon just to finish all the male members of Pandu's family. Therefore, in one sense, it was more dangerous than the atomic bomb because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. Knowing all this, Lord Sri Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone other than Krishna. In the Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished, and he behaves according to the quality or degree of the devotional service rendered by the devotees. Here, the word Ananya Vishayatmanam is significant. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. But the Lord neglects even the great warriors and also vanquishes them in no time. When the Lord saw that there was no time for the Pandavas to counteract the Brahmastra of Ashwatthama, he took up his weapon even at the risk of breaking his own vow. Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still, according to his vow, he should not have taken up his own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as the Bhaktavatsala, or the lover of his devotee, and thus he preferred to continue as Bhaktavatsala than to be a worldly moralist who never breaks his solemn vow. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। यहाँ पर अनेक विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है। सबसे पहली बात है, जो सबसे ध्यान देने योग्य शब्द जो इस श्लोक में है, वो है अनन्य। अनन्य विषयात्म नाम। अनन्य का अर्थ है जिसने किसी और की शरण ना ली हो। अन्य, जिसके लिए कोई अन्य का अस्तित्व नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा। उसके लिए केवल एक ही शरण है, वो है भगवान कृष्ण। उसके लिए केवल एक ही स्थान है जहां वो जा सकता है कुछ भी विपदा आने पर, वो है भगवान कृष्ण। ऐसे भक्त को अनन्य भक्त कहते हैं। वो कहीं नहीं जाता, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी। वह अपने शक्ति पर भी भरोसा नहीं करता, वो दूसरे की शक्ति पर भी भरोसा नहीं करता, वो देवताओं तक की शक्ति पर भरोसा नहीं करता है। वो केवल भगवान के ऊपर भरोसा करता है कि मैं केवल भगवान का। इट इज कॉल्ड चेष्ट भक्त। एक पवित्र भक्त जो होता है, वो केवल भगवान का स्मरण करता है जब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। तो ऐसे अनन्य भक्त थे पांडव, जिनके हाथ में खुद इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी प्रकार के ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा कर सके। अर्जुन तो स्वयं जानते थे ब्रह्मास्त्र चलाना, लेकिन फिर भी जब इस प्रकार की परिस्थिति आई, जब अश्वत्थामा ने उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर आक्रमण किया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, तो उन्होंने किसी और की शरण लेने के बजाय और अपनी शक्ति की शरण लेने के बजाय उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण लेना स्वीकार किया। और भगवान ने भी अपना नाम भक्त वत्सल ऐसे ही नहीं रखा है, यानी भगवान के भक्तों ने ऐसा नाम रखा है क्योंकि वो भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, और वो उसके लिए अपनी स्वयं के प्रण को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं कि मैं किसी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान यहाँ पर
युद्ध जैसे युद्ध की ही परिस्थिति, ऑलमोस्ट युद्ध खत्म हो चुका है, फिर भी भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में ये भी वादा किया है कि न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि तुरंत ही मेरा भक्त जो ऐसा है तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है। और कौन्तेय, ये अर्जुन जाकर ये घोषणा कर दो कि मैं, मेरा जो भक्त है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं अर्जुन से घोषणा करने के लिए, कि भगवान कहते हैं मेरी बात पे हो सकता है कि मेरा नाम छलिया है, लोग सोचे अरे ये तो छलिया है, ये तो कुछ भी छल कर सकता है, झूठ बोल सकता है, कोई मेरी बात पे भरोसा ना करे, लेकिन मेरे भक्त की बात पर पूरा संसार भरोसा करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं जाओ तुम घोषणा करो। और वो घोषणा करवाते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं आई प्रोवाइड व्हाट ही लैक्स एंड प्रिजर्व व्हाट ही हैज, मैं उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है, और उसको वह देता हूं जो उसके पास नहीं है। तो ये भगवान ने कहा है भगवत गीता में, और भगवान उस वचन को निभा रहे हैं यहाँ पर, और तुरंत ही अपनी सुदर्शन चक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। यस, सिद्धा प्रभु, want to read? अनथास्य सर्वभूतानां आत्मा योग यो हरिः स्व माया अरम अरंदो गर्भम गर्भ गर्भम वैरात्यः कुरु तन्यवे। Translation: The Lord Supreme, Mysticism Sri Krishna, resides within everyone's heart as Paramatma. As such, just to protect the progress of the Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his potential energy. Purport: The the Lord of Supreme Mysticism can simultaneously reside within everyone's heart or equally within the atom by Paramatma future. His plenary portion, therefore, from within the body Uttara, he covered the embryo to save Maharaj Parikit and protect the progeny of Maharaj Kuru, of whom King Pandav was also descendant, both the son of Dhritarashtra and those Pandu belong to the same dynasty of Maharaj Kuru. Therefore, both of them were generally known as Kurus. But when there were differences between the two families, the son of Dhritarashtra were known as Kurus, whereas the son of Pandu were known as Pandavas. Since the son and a grandson of Dhritarashtra were all killed in the battle of Kurukshetra, the last son of a dynasty is designated as a son of a Kurus. तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जगह विद्यमान है, और उन्होंने किस प्रकार रक्षा की, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को ढक लिया अपने ऊर्जा के माध्यम से, और इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। भगवान जो है ईशोपनिषद कहता है तद दूर तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य, भगवान दूर भी हैं, पास भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, चल भी हैं, अचल भी हैं। भगवान, आप जो जिस प्रकार से भगवान की आप परिभाषा देना चाहें, भगवान उस परिभाषा में फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान वो सत्य हैं, वो परम सत्य हैं जिनके ऊपर कोई भी दूसरा सत्य नहीं है। तो आप किसी भी परिभाषा में अगर कहेंगे कि वो भगवान, और हर हर शब्द का तात्पर्य भी है कि भगवान दूर भी हैं, सबसे बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। वक्त तदूर तदंत, लेकिन तदंतरस्य बहुत ही निकट भी हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में भगवान विद्यमान है। तो भगवान वास्तव में रक्षा कर रहे थे अपने भक्तों की। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को ढक लिया अपनी एनर्जी से। यस, प्रतीक प्रभु, यू वांट टू रीड? यद्यप्यस्त्र ब्रह्माशिरस्तव मोघमं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज असाध्य समशाम्यद भृगुदः
दोहा. Translation: O Shaunaka, glory of Bhrigu's family. Although the supreme Brahmastra weapon released by Ashwathama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu, Lord Krishna. Purport: In the Bhagavad Gita, it is said that the Brahma Jyoti, or the glowing transcendental effulgence, is resting on Lord Shri Krishna. In other words, the glowing effulgence known as Brahma Tejas is nothing but the rays of the Lord, just as the sun rays are rays of the sun disk. So, this Brahma weapon also, although materially irresistible, could not surpass the supreme strength of the Lord. The weapon called Brahmastra, released by Ashwathama, was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. That is to say, he did not wait for any other's help because he is absolute. तो भगवान के लिए ब्रह्मास्त्र को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तुच्छ है। भगवान सारे ब्रह्मांड को समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड के में जो प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का मृत्यु आती है, जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होता है, तो सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, रोम छिद्रों में, महाविष्णु के रोम छिद्रों में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान के लिए एक छोटे से ब्रह्मास्त्र को रोकना कोई जैसे एक छोटे बच्चे के लिए मशरूम उखाड़ने के बराबर है। तो भगवान के कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के शरीर से जो ब्रह्म तेज निकलता है, उससे पूरा संसार उस पर निर्भर करता है एक्चुअली। तो वो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जिसको ब्रह्मन कहा जाता है। आप सुनते होंगे कि मायावादी कहते हैं कि हम जो है ब्रह्मा, इस प्रकाश में हम समा जाएंगे, हमें प्रकाश दिखाई देता है। हमारी दादी माँ हमारी कहती थी कि हम ध्यान लगाते तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश में हमको समा जाना है। वास्तव में वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश कोई निराकार चीज नहीं है। प्रकाश भगवान के साकार रूप से निकलने वाला प्रकाश है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और हम उस ब्रह्म तेज में जाकर मिल जाना चाहते हैं, ऐसा मायावादी या ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। वास्तव में भगवान के ब्रह्म तेज से ज्यादा आकर्षक है जब आप भगवान के साथ संबंध बनाते हैं, भगवान की पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है उनके साथ आप संबंध बनाते हैं। तो यहाँ भगवान अपने स्वरूप के साथ रक्षा की है अपने भक्तों की। और भगवान की शक्ति के आगे ब्रह्मास्त्र टिक नहीं सका। यस, सुमित प्रभु, want to read? Point 8.16 Mammamashta he itad acharyam sharva charyamay च्युते या idam maya devya srajate avati ante aha. Translation: O Brahmanas, do not think this is to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. Purport: The activities of Lord are always inconceivable to the tiny brain of the living entities. Nothing is impossible for the Supreme Lord, but all his actions are wonderful for us, and thus he is always beyond the range of our conceivable limits. The Lord is the all powerful, all perfect personality of Godhead. The Lord is cent% perfect, whereas others, namely Narayana, Brahma, Shiva, the demigods, and all other living beings, possess only different percentages of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. तो देखिए, जो मैं बोल रहा था यही शिल प्रभुपाद जी ने और स्वयं भागवतम के में सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए कि भगवान को हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करें, हम सोचते हैं हम भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे कि भगवान को समझ जाएंगे। आप कभी भी इतनी भक्ति नहीं कर सकते कि भगवान को समझ जाए, क्योंकि वास्तव में हमारे जो बुद्धि की क्षमता है वो उतनी है नहीं। जिस दिन आपकी बुद्धि की क्षमता, जब आप भगवान को ज्यादा समझने लगेंगे तो आप वैसे भी इस मटेरियल वर्ल्ड के लायक नहीं रहेंगे। जब आप भगवान को के प्रेम में रम जाएंगे, या भगवान को, भगवान कहते तो यही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति महात्मेति। सो अर्जुना, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य गतिविधियों को समझ सकता है, वह
पुनः जन्म नहीं लेता है। तो मतलब समझना है, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये बात भी हमें पता रहनी चाहिए कि मैं समझना चाहूं, कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन अपनी क्षमता से मैं भगवान को कभी पूरा समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्षमता अणु के समान है और भगवान की क्षमता विभू के समान है। भगवान संपूर्ण है, मैं उस संपूर्ण का एक तुच्छ मात्र अंश हूं, और उस अंश के लिए संपूर्ण को समझ पाना असंभव है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से, लोग ज्ञान योग के पीछे पड़े रहते हैं, ज्ञान के माध्यम से नेति नेति नेति, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, तो कौन भगवान है? एक्चुअली वो केवल नेति नेति करके ही इतना फंसे रहते हैं कि ये सारा संसार भगवान नहीं है, सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और सब चीजों में नेति करते हैं। लेकिन वास्तव में वो क्या है भगवान, उसको समझ पाना असंभव रहता है उनके लिए। उसी प्रकार एक भक्त को भी विनम्र होना चाहिए कि चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन मैं भगवान को कभी अपनी शक्ति से नहीं समझ पाऊंगा। भगवान हमारी रेंज के बियॉन्ड है। लेकिन जितना आप समझ लेंगे, उतना ही आप भगवान के से प्रेम में पड़ते जाएंगे, जितना आप समझते जाएंगे भगवान को। और भगवान का जो गुण है वो प्रतिपल बढ़ते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत बढ़ते रहते हैं। तो आप भले ही देवताओं को समझ लें, जीवात्माओं को समझ लें, और ब्रह्मा को समझ लें, इवन नारायण को भी समझ सकते हैं, भगवान कृष्ण को समझना, बिकॉज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो। कृष्ण को समझना असंभव है। 64 कलाएं हैं भगवान की, और वो पूर्ण जो एक ही इज पूर्ण एक्चुअली। उनसे, उनके अलावा सब अपूर्ण है, हम सभी अपूर्ण हैं। तो वो पूर्ण अपूर्ण को पूर्ण को जानना असंभव है। तो उनसे बड़ा कुछ नहीं है, और उनकी प्रतियोगिता में भी कोई नहीं है, कोई उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं लोग नहीं समझ रहे हैं कृष्ण को, हम आप सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवारी जन क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझते हैं। हम भी उस जब जब हमें कोई बड़े भक्त देखते हैं तो वो कहते हैं अरे ये कृष्ण को नहीं समझ रहा है। हम देखते हैं दुनिया वालों को, हम देख सोचते हैं अरे ये कृष्ण को नहीं समझ रहा है। वास्तव में कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने गुरु वर्गों की आज्ञा का पालन करें, साधना करें, और धीरे धीरे रियलाइजेशन होते जाएंगे जब हम अपनी सेवाओं को ईमानदारी से करेंगे, और भगवान के नाम जप को हम ईमानदारी से करेंगे, तो हमारे जो साक्षात्कार हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, और उसी के अनुसार हमारी प्रगति भी भक्ति में होती रहेगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जितना ईमानदारी से, निष्ठा से हम कर सकते हैं, हमें अपनी भक्ति करनी है। और हमें अपना नाम जप भी उतनी ही निष्ठा से करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 17 टुमारो।